خیر مقدم ہے۔ آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حدیث مبارکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ سیکریٹریٹ کے احاطے میں مساجد کی تعمیر کے لیے آج مفتی خلیل احمد کے ہاتھوں سنگ بنیاد۔ اندرون ایک ہفتہ 2 کروڑ 90 لاکھ کی لاگت سے مساجد کی تعمیر شروع ہوگی، وزیر داخلہ کا بیان۔ ایم ایل سی ادارہ جات مقامی کے آزاد امیدوار نے ڈویژن 31 کے کارپوریٹر کی جعلی دستخط کی اور تصدیق نامہ داخل کیا۔ کارپوریٹر نے مجلس قائدین کے ہمراہ امیدوار کے خلاف شکایت کی۔ ملیالہ گوردھن مسلسل تیسری مرتبہ سی پی ایم کے سٹی جنرل سیکرٹری منتخب۔ ایم پی ٹی سی قائدین نے ان کو تہنیت پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تمام لوگ ہر حال میں کووڈ کے 2 ڈوز ضرور لیں، اپنی اور اپنے افراد خاندان کی زندگیوں کو خطرات میں نہ ڈالیں۔ کورونا میں کمی ہوئی ہے، خاتمہ نہیں، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا بیان۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سیکریٹریٹ کی شہید مساجد کی اثر نو تعمیر کے لیے مفتی خلیل احمد کے ہاتھوں سنگ بنیاد۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی، اکبر الدین اویسی قائد مخننہ مجلس پارٹی کے علاوہ چیئرمین وقت محمد سلیم بھی شریک۔ وزیر داخلہ صحافیوں کے سوالات کے گھیرے میں۔ سیکریٹریٹ کی اثر نو تعمیر کے لیے سیکریٹریٹ کی قدیم عمارتوں کو منہدم کر دیا گیا۔ اس دوران سیکریٹریٹ کے احاطے میں موجود 2 مساجد کو بھی شہید کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ایک زبردست تنازع کھڑا ہو گیا تھا اور مسلمانوں نے کھل کر اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد ریاستی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد کی انہی مقامات پر اثر نو خوبصورت انداز میں تعمیر کی جائے گی۔ اس کے بعد یہ معاملہ برافتان کی نظر ہو گیا تھا، جس پر ایک بار پھر مسلم جماعتوں نے اپنی ناراضگی کا کھل کر اظہار کیا اور احتجاج بھی منظم کیا، جس کے بعد وقف بورڈ کے ریاستی صدر نشین محمد سلیم کی توسط سے اعلان کروایا گیا کہ سیکریٹریٹ میں لبے سڑک ایک خوبصورت مسجد کی تعمیر کی جائے گی، جس کی تعمیر پر 2 کروڑ 90 لاکھ کے مصارف ہوں گے، اور انہوں نے مسجد کا ڈیزائن بھی پیش کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد طویل عرصہ خاموشی طاری رہی، اور پھر حال ہی میں تحریک مسلم شبان کے صدر سید مشتاق ملک نے ایک اور اعلان جاری کیا تھا کہ اگر جلدی سیکریٹریٹ کی مساجد کی تعمیرات کے کام شروع نہیں کیے جائیں گے تو پھر ریاست گیر احتجاج منظم کیا جائے گا۔ اور آج 25 نومبر کو سیکریٹریٹ کی مسجد کی تعمیر کے لیے مفتی خلیل احمد کے ہاتھوں سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس تقریب میں وزیر داخلہ محمد محمود علی، قائد مخننہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی، ایم ایل اے احمد بلالہ، چیئرمین وقف بورڈ محمد سلیم اور ریاستی صدر اقلیتی سیل TRS محمد مجیب الدین بھی شریک تھے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بتایا کہ سیکریٹریٹ کے احاطے میں 2 مساجد کی بھاری اخراجات سے تعمیر کی جا رہی ہے۔ ان مساجد کی تعمیر کے لیے حکومت 2 کروڑ 90 لاکھ روپے خرچ کرے گی اور اندرون ایک ہفتہ تعمیری کاموں کا آغاز ہو جائے گا، اور سیکریٹریٹ کی تکمیل سے قبل ہی ان مساجد کی تعمیر مکمل کر لی جائے گی، اور ان مساجد کو عام مصلیوں کے لیے کھلا رکھنے کے لیے سیکریٹریٹ کے احاطے کے باہر رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مساجد ریاست کے سیکولر وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے مسلمانوں کو ایک بہترین تحفہ ہوگا۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں کو سنگ بنیاد تقریب میں شرکت سے روکا گیا، جس پر میڈیا کے نمائندوں نے اعتراض کیا اور ساتھ ہی یہ بھی سوال اٹھایا کہ اس اہم سنگ بنیاد تقریب میں وزیر اعلیٰ KCR اور ان کے خاندان کا کوئی فرد کیوں شریک نہیں ہوا، اور یہ بھی سوال اٹھایا کہ اقلیتی امور کے وزیر کے ایشور اس اہم تقریب سے غیر حاضر کیوں ہیں، جس پر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بتایا کہ تمام قائدین MLC انتخابات کے لیے سرگرم ہے، لہٰذا وہ اس تقریب میں شریک نہیں ہو سکے۔ بہت بڑے مفتی ہے جامعہ نظامیہ کے، ان کے ہاتھوں سے فاؤنڈیشن ڈالا گیا۔ ہمارے بہت سے سیاسی قائدین بھی موجود تھے، جس میں خاص طور سے ہمارے اکبر الدین اویسی صاحب، بلالہ صاحب بھی تھے، اور ہمارے بھی بہت سے لیڈرز یہاں موجود تھے، جس میں ہمارے سلیم صاحب، ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب، ہمارے مائنارٹی پریزیڈنٹ صاحب مجیب صاحب، اور بہت سے ہمارے TRS کے قائدین بھی آئے تھے۔ ہمارے CM صاحب کا ایک ہی مقصد تھا کہ مسجدیں اچھی بننا چاہیے، اور دونوں مسجدوں کے لیے 2 کروڑ 95 لاکھ روپے کا بجٹ سینکشن کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ایک ہفتے میں کام شروع کیا جائے گا، اور مسجدیں بہت اچھی بنائیں گے۔ یہ مسجدیں CM صاحب کا ارادہ یہ تھا، جس طرح ہم سیکریٹریٹ اچھی بنا رہے ہیں
मस्जिद भी उसी तरीके से होना चाहिए। लोग ख़ास तौर से मस्जिद देखने भी आना चाहिए, मस्जिद में इबादत करें। और इसमें ख़ास बात ये रही, साबिका में जो सेक्रेटरीट की मस्जिद थी, सेक्रेटरीट के कंपाउंड वॉल के अंदर थी, तो उसमें होता है कि लोगों को आने के लिए मुश्किलात होते थे, पर ये जो है बिल्कुल लबे सड़क आ रही है। और सीएम साहब का भी इरादा यही था कि, और हमारे उलमाओं का भी है, जिस जगह मस्जिद है वहीं बनना चाहिए। जहाँ पर कब तक कंप्लीट होंगे साहब? 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। एक वायदा है हमारा भी सीएम साहब का भी, सेक्रेटरीट का इफ्तिताह से पहले मस्जिदों में अज़ान पूछना चाहिए, मंदिर में घंटे बजना चाहिए। ये तेलंगाना एक सेकुलर तेलंगाना है। एमएलसी इंतखाबात के लिए आजाद उम्मीदवार कोटगिरी श्रीनिवास ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। इसके तस्दीक कुनिंदगान में डिवीजन 31 की कॉर्पोरेटर रजिया सुल्ताना का नाम भी शामिल था। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और कॉर्पोरेटर रजिया सुल्ताना ने तस्दीक करने से इनकार कर दिया और जिला हुक्काम से इस उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा कि उसने धोखाधड़ी और जालसाजी का इर्तिकाब किया है। इदाराजात मुकामी के ज़मरे के इंतखाब के सिलसिले में टीआरएस ने कलवा कुंडला कविता को अपना पार्टी उम्मीदवार नामजद किया, जबकि दीगर अहम सियासी जमातों ने आददी कुव्वत न होने की बिना पर इन इंतखाबात से दूरी इख्तियार कर ली। इम्कान था कि कविता का बिला मुकाबला इंतखाब हो जाता, मगर कोटगिरी श्रीनिवास नामी एक शख्स ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया और उसने जिन 10 तस्दीक कुनिंदगान के नाम और दस्तखत पेश किए, इनमें से एक नाम निजामाबाद बल्दी कॉरपोरेशन के डिवीजन 31 के कॉर्पोरेटर रजिया बेगम का भी नाम शामिल था। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए लाजमी शर्त है कि उम्मीदवार अपने पर्चा नामजदगी के साथ 10 तस्दीक कुनिंदगान के नाम भी पेश करे, जिस पर तस्दीक कुनिंदा कॉर्पोरेटर, काउंसलर या एमपीटीसी, जेडपीटीसी के नाम और दस्तखत मौजूद हो। श्रीनिवास ने 10 नाम और दस्तखत पेश किए, जिसमें डिवीजन 31 की कॉर्पोरेटर रजिया बेगम का नाम भी शामिल है। वाज़ेह है कि रजिया बेगम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की वालदा मोहतरमा है। उनको जैसे ही इस बात की इत्तला मिली कि श्रीनिवास ने अपने पर्चा नामजदगी में रजिया बेगम कॉर्पोरेटर के नाम और दस्तखत को शामिल किया है, वो हैरत का शिकार हो गए और उन्होंने इसकी इत्तला सिटी सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद को दी, जिसके बाद उन्होंने मोहम्मद शकील अहमद के हमरा जिला कलेक्टर से इस बात की शिकायत की कि कोटगिरी श्रीनिवास ने इनके नाम का गलत इस्तेमाल किया और इसके पर्चा नामजदगी पर मजलिसी कॉर्पोरेटर रजिया बेगम ने दस्तखत नहीं किए हैं और ना ही वो इन इंतखाबात में श्रीनिवास की तस्दीक करती है। इस मौके पर सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने अपने बयान में कहा कि इस मौके पर वाज़ेह तौर पर बताया गया कि मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने टीआरएस उम्मीदवार के कविता की तायद की हिदायत दी है, लिहाजा मजलिस के तमाम 16 कॉर्पोरेटर्स टीआरएस की तायद के पाबंद है। लेकिन कोटगिरी श्रीनिवास ने रजिया सुल्ताना कॉर्पोरेटर का नाम अपने तस्दीक कुनिंदगान में शामिल किया और ये सरासर धोखाधड़ी है और साथ ही इसने रजिया सुल्ताना के जाली दस्तखत किए और ये सरासर जालसाजी है। लिहाजा हम जिला अरबाब मजाज से दरख्वास्त करते हैं इस आज़ाद उम्मीदवार कोटगिरी श्रीनिवास के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उसने न सिर्फ इंतखाबी निज़ाम को गुमराह करने की कोशिश की बल्कि धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए एक इज्जतदार खातून कॉर्पोरेटर को बदनाम करने की साजिश की है, जिस पर सिटी मजलिस अपनी शदीद नाराजगी का इजहार करती है। इस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। इस मौके पर इनके हमरा कॉर्पोरेटर रजिया सुल्ताना, इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली के अलावा कोऑप्शन मेंबर्स मोहम्मद शहबाज और अरशद पाशा भी मौजूद थे। ये बात हलचल में थी कि निज़ामाबाद ज़िले के मंजाली से पंचायत जो लोकल बॉडीज़ के एमएलसी इलेक्शन के सिलसिले में आखिरकार टीआरएस के उम्मीदवार मैडम कविता को उम्मीदवार बना गया था। इसी दरमियान में एक कोटगिरी श्रीनिवास बल के जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से नॉमिनेशन दाखिल किया, उसमें उन्होंने जो 10 आदमियों का जो नाम दिया था उसमें एक हमारी अपनी पार्टी से वाबस्ता रजिया सुल्ताना साहिबा का जो कॉर्पोरेटर 31 डिवीज़न की से नुमाइंदगी करते हैं, उनका लेटर इस्तेमाल किया, उनका नाम इस्तेमाल किया ये कह करके इनका तायद हमें हासिल है। लेकिन हमारे कॉर्पोरेटर और हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई नॉमिनेशन या उनकी तायद की गई, बल्कि वो गैर ज़रूरी जाली दस्तावेज तैयार करते हुए हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करा। ये सिग्नेचर भी उन्हें अपनी गलत इस्तेमाल करते हुए सिग्नेचर भी जाली
दाखिल की सामने आई, तो हम ये चीज़ को बहुत खंडन करते हैं और इंतज़ामिया से हम ये हमारी चैलेंज ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो जो आदमी कोटगिर श्रीनिवास जो हमारे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की दिल्ली में एक अहम कॉन्फ्रेंस कौमी सदर फहीम कुरैशी एडवोकेट ने मुख्तलिफ अज़ाइम का इजहार किया। इस मौके पर नुमाया खिदमत और कामयाबी पर अवार्ड दिए गए। नवीद कुरैशी ने भी अवार्ड व तौसीफ नामा हासिल किया। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस का 21 नवंबर को दिल्ली में इनेकाद अमल में आया। इस इजलास की सदारत नेशनल प्रेसिडेंट फहीम कुरैशी एडवोकेट ने की, जबकि अहम शुरा में कौमी नायब सदर सनोबर अली कुरैशी और कन्वीनर नॉर्थ इंडिया सलीम अहमद और दहली सदर स्किन कुरैशी के अलावा सदर जिला जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी रफीक कुरैशी भी शामिल थे। कुरैश बरादरी की एक बड़ी तादाद ने मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से इस इजलास में शरीक रही। कुरैश बरादरी की एक बड़ी तादाद मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से इस इजलास में शरीक रही। इस इजलास में कई अहम मसाइल पर गौर खौस किया गया जो कुरैश बरादरी को दरपेश है। इन मसाइल की यकसुई के लिए एक लाहे अमल तरतीब दिया गया। इस इजलास में तय किया गया कि कुरैश बरादरी के होनहार समाजी कारकुनों, लेक्चरर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स और दीगर शोबेजात में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले अफराद को एवार्ड और तौसीफ नामों से सरफराज किया गया। इस इजलास में रफीक कुरैशी के फर्जंद नवीद कुरैशी, जिन्होंने दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल की, और इनको भी नुमाया कामयाबी पर एवार्ड व तौसीफ नामों से सरफराज किया गया। फहीम कुरैशी एडवोकेट ने अपने खिताब में कुरैश बरादरी से कहा कि अब दौर बदल रहा है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। आबाई पेशे के साथ साथ हमें इस मुसाबकती ज़माने में लोगों के कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अब कुरैश बरादरी के नौजवानों में तालीम का रुझान बढ़ता जा रहा है और कई नौजवान जेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों की हौसला अफजाई और ताउन लाजमी है। उन्होंने नुमाया मुकाम व कामयाबी हासिल करने वाले तमाम कुरैश बरादरी के नौजवानों को दिली मुबारकबाद दी और दरख्शां मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मलयाला गोवर्धन मुसलसल तीसरी मर्तबा सीपीएम के सिटी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। सदर जिला एमबीटी अब्दुल खादर साजिद और सिटी एमबीटी सदर अब्दुल बासित ने मलयाला गोवर्धन को तहनीयत पेश की और मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सीपीआईएम को बाएं बाजू की जमातों में अहम तरीन मौक़िफ़ हासिल है। मजदूर, दलित, गिरिजन और दिगर पसमानदा व कुचले हुए तबकात की बेबाक नुमाइंदा जमात की हैसियत से सीपीएम को अहमियत की नज़र से देखा जाता है। निज़ामाबाद शहर के सिटी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मलयाला गोवर्धन ने 2 मियादों की कामयाब तकमील कर ली। इनकी शानदार कारकर्दगी और अवामी मसाइल की बेबाक नुमाइंदगी व तर्जुमानी की वजह से मलयाला गोवर्धन को पार्टी में नुमाया हैसियत हासिल है और इनको अहमियत की नज़र से देखा जाता है। लिहाजा तीसरी मर्तबा भी इनको बिला मुकाबला सिटी जनरल सेक्रेटरी सीपीएम मुंतखब कर लिया गया। मलयाला गोवर्धन के मुसलसिल तीसरी मर्तबा सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर इनको दिली मुबारकबाद देते हुए एमबीटी के सिटी सदर अब्दुल बासित के मकान पर इनकी तहनीती तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदर जिला एमबीटी अब्दुल खादर साजिद ने शिरकत की। इन कायदीन ने बताया कि कई अहम व हसास मसाइल में मलयाला गोवर्धन इनके साथ शाना बशाना शरीक थे और इन मसाइल की यकसुई में अपना मुमकिन ताउन पेश किया। అలాగే మీర్ బషారత్ గారు ఎంబీటీ జనరల్ సెక్రటరీ, అదేవిధంగా ఆవాజ్ కమిటీ జనరల్ సెక్రటరీ మొయిజ్ గారు, మిగతా మిత్రులందరూ కలిసి ఈరోజు సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. దీనికి సిపిఎం పార్టీగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాల వల్ల మైనారిటీలు మొత్తం కేవలం ముస్లింలే కాదు, ఈరోజు సిక్కులు కానీ, క్రైస్తవులు కానీ, థర్డ్ జెండర్స్ కానీ అనేక మంది కూడా ఈరోజు ప్రమాదాలకి గురవుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. వాళ్ళ బతుకులు కూడా ఆత్మరక్షణలో పడాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది. అంతేకాదు వాళ్ళకు సంబంధించిన ఎన్పిఆర్, సిఐఏ, ఎన్ఆర్సీ లాంటి చట్టాలను తీసుకువచ్చి ఈరోజు ప్రజల్ని ఇబ్బంది చేసే పద్ధతుల్లో అటువంటి చట్టాలు తీసుకొస్తున్నారు. దీన్ని जदीद दौर में बालों की खूबसूरत तराश अहमियत के हामिल है। इस काम के लिए माहिरीन की जरूरत है। लिहाजा माहिरीन को लेकर बोधन में फैशन मेंस पार्लर का इफ्तिताह अमल में आया।
जदीद फैशन के तकाज़ों के मुताबिक अपने बाल बनाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी यह है कि बोधन शहर के मशहूर मोहल्ले रक्कासपेट में फैशन मेंस पार्लर का आगाज किया गया है। वार्ड नंबर 7 के काउंसलर मोहम्मद अकील ने इस पार्लर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा काउंसलर मीर नजीर अली, बोधन मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन मोहम्मद शकील, मोहम्मद हादी और अज्जू पटेल भी शामिल थे। इस मौके पर इस पार्लर के मालिकीन जाकिर खातिब और शेख इस्माइल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इनकी बकसरत गुलपोशी व शालपोशी की। इस मौके पर जाकिर खातिब और शेख इस्माइल ने कहा कि वक्त के साथ फैशन तब्दील होता है और जदीद तकाज़ों से हमाहंग होता है। इंसान की खूबसूरती में सबसे अहम रोल बालों का होता है और बालों को जितनी खूबसूरती से संवारो इंसान उतना ही जाज़िब नज़र व पुरकशिश नजर आता है। दौरे हाजिर में बालों को तराशने के बेशुमार तरीके वजूद में आ चुके हैं और साथ ही बालों की तराश भी नई जिद्दत इख्तियार कर रही है। लिहाजा जदीद तकाज़ों की तकमील करने के लिए बाल काटने वाले लोगों के पास महारत लाजमी है, वरना अगर बाल थोड़े भी खराब हो जाए तो इंसान की शख्सियत में तब्दीली साफ महसूस होगी। लिहाजा फैशन मेंस पार्लर का आगाज करते वक्त इस बात को जहन में रखते हुए बाल काटने के इंतहाई माहिर अफराद की खिदमत को हासिल किया गया है और यहाँ पर जदीद फैशन के तकाज़ों की पूरे एतमाद के साथ तकमील की जाएगी। हमारे ग्राहकों बिलखुसूस नौजवानों को इंतहाई पुरकशिश और जाजिब नजर बनाना अब हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा एक बार जरूर तशरीफ लाए और खिदमत का मौका दे और हमारी महारत को जांचे। पकवान गैस की एजेंसी से सारिफिन को मुंतकिली के दौरान रास्ते में ही गैस की चोरी कर लेने का एक मामला बोधन में मंजर आम पर आया। नौजवानों ने खातियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सीआई प्रेम कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। बोधन में एचपी के गैस सिलेंडर से गैस की चोरी का इर्तिकाब करते हुए डिलीवरी बॉयज को शकरनगर के नौजवानों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया कि एक गैस एजेंसी में काम करने वाले दो नौजवान ऑर्डर पर मकानों को गैस की मुंतकिली अमल में लाते थे, लेकिन गैस सिलेंडर को सारिफिन के मकान तक पहुँचाने से कबल ये नौजवान भरे हुए सिलेंडर से कुछ मिकदार में गैस खाली सिलेंडरों में मुंतकिल कर देते थे। ये सिलसिला कब से जारी था इसका अभी इल्म न हो सका, लेकिन खाली सिलेंडरों में गैस मुंतकिली करते देखकर शक्कर के नौजवानों ने इन डिलीवरी बॉयज को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दौरान इत्तेफाकन शक्कर वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नजीर अली वहां से गुजर रहे थे। नौजवानों ने इस बात की इत्तला मीर नजीर अली को दी। उन्होंने इन डिलीवरी बॉयज से सवाल किया कि वो भरे हुए सिलेंडरों से खाली सिलेंडरों में गैस क्यों मुंतकिल कर रहे थे, ये सिलसिला कब से जारी है। इस्तिफसार पर इन डिलीवरी बॉयज ने बताया कि इनका तरीक़ेकार ये था कि वह हर भरे हुए सिलेंडर में से 1 किलो गैस खाली सिलेंडर में मुंतकिल कर देते थे। इस तरह खाली सिलेंडर को भी भर लिया जाता था और इन सिलेंडर्स को ब्लॉक में फरोख्त कर दिया जाता था। इस तरह इनको भारी आमदनी हो जाती थी। शकरनगर के नौजवानों ने इन डिलीवरी बॉयज को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। सर्कल इंस्पेक्टर बोधन प्रेम कुमार ने बताया कि शिकायत को संजीदगी से लिया जाएगा और इसकी बारीक बीनी से तहकीकात की जाएगी और इस बात की भी तहकीक की जाएगी कि इस गैस चोरी में महज ये डिलीवरी बॉयज ही मुलविस है या फिर एजेंसी के मालिकीन भी धांधली में शामिल थे। మధ్యాహ్నం సుమారుగా 3 గంటల ప్రాంతంలో రాజు అని మన కానిస్టేబుల్ గస్తీ నిర్వహిస్తున్న సందర్భంలో శక్కర్నగర్లో కొంతమంది ప్రజలు గుమిగూడడం చూసి అక్కడికి వెళ్ళగా అక్కడ రాహుల్ మరియు సాయిలు అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు సిలిండర్లోంచి ఒక నిండు సిలిండర్లోంచి ఖాళీ సిలిండర్లోకి గ్యాస్ ఫిల్ చేస్తుండగా పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ మీద కేసు రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం. లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ యాక్ట్ ప్రకారం కేసు రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా వీళ్ళని విచారించగా దీక్షిత్ గ్యాస్ ఏజెన్సీలో డెలివరీ బాయ్స్ గా పనిచేస్తున్నారని చెప్తున్నారు. एमएलसी कविता के बिला मुकाबला इंतखाब पर बोधन में जबरदस्त जश्न। सीनियर कायद अब्दुल रज्जाक की क़ियादत में टीआरएस कायदीन और कॉलेज की तालिबात ने जश्न में हिस्सा लिया। इस जश्न की खास बात ये थी कि तालिबात ने कविता के मास्क लगाए रखे थे। इदारजत मुकामी के जमरे में टीआरएस ने एमएलसी कविता को एक बार फिर पार्टी उम्मीदवार नामजद किया और इंतखाबी मराहिल के दौरान किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार श्रीनिवास का पर्चा नामजदगी मशकूक पाया गया, जिसकी वजह से उसके पर्चा नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया। इसके साथ ही टीआरएस उम्मीदवार के कविता को मुंतखब करार दिया गया, जिसकी इत्तला मिलते ही
ही टीआरएस के सीनियर कायद अब्दुल रज़ाक की क़यादत में बोधन के एक कॉलेज में टीआरएस के कायदीन और कॉलेज की तालिबात ने जबरदस्त जश्न मनाया और के कविता के हक में नारे लगाए। इस मौके पर खास बात ये थी कि कॉलेज की तालिबात ने अपने चेहरे पर एमएलसी कविता का मास्क पहने रखा था। इस तरह इन तालिबात ने एमएलसी कविता से अपने गहरे लगाव और खुलूस के साथ इजहार यगानगत का मुजाहरा किया। जश्न के दौरान बड़े पैमाने पर मिठाइयाँ तकसीम की गई और जबरदस्त आतिशबाजी की गई। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि बिला मुकाबला इंतखाब से इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कविता जिले की कितनी कदावर कायदा है। उन्होंने कहा कि अगर एमएलसी इंतखाबात मुनक्किद भी होते तो के कविता भारी अक्सरियत से मुंतखब हो जाती थी, लेकिन सूरत हाल की वजह से इनका बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। उन्होंने कहा कि टीआरएस की मकबूलियत में हर आए दिन इजाफा ही होता जा रहा है और आइंदा असम्बली इंतखाबात में भी टीआरएस को ही भारी अक्सरियत हासिल होगी और एक बार फिर रियासत का इख्तिदार टीआरएस के कब्जे में ही रहेगा और तेलंगाना रियासत सुनहरा तेलंगाना बनकर उभरेगी। आवाम रियासत की हमाजहत तरक्की से खुश और मुतमईन है। కవితక్క యొక్క గెలుపు కోసం అందరూ అనిశాలు కృషి చేసినందుకు మరియు బోధన్ పట్టణం నుంచి మరియు ఉమ్మడి జిల్లాల నుంచి కవితక్క గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారు। भैंसे में टीपू सुल्तान रैली निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ ऐसी ही रैलियां निकालने की इजाजत होगी जो भैंसे की रिवायत का हिस्सा है। फिलहाल इलेक्शन कोड की वजह से इजाजत देना मुमकिन नहीं। भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे का बयान। जिले निर्मल का भैंसा तालुका जो हमेशा ही हसास माना जाता है और आए दिन यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर मुनाफिरत का माहौल बन जाता है। भैंसा शहर की पुरअमन फिजा को बरकरार रखने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने यहाँ पर किरण खेर नामी आईपीएस ऑफिसर को एडिशनल एसपी के तौर पर मुकर्रर किया है। किरण खेर जो पिछले कुछ महीनों से भैंसा में एडिशनल एसपी की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए भैंसा शहर की पुरअमन फिजा को बरकरार रखने के लिए जी जान से मेहनत की और कामयाबी हासिल की है, उन्होंने सख्त तरीन फैसले लेने शुरू किए हैं। हाल ही में उन्होंने जारी किए गए अपने नए बयान में बताया कि 28 नवंबर बरोज़ एतवार को निकाली जाने वाली टीपू सुल्तान की रैली को पुलिस की जानिब से कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये फैसला भैंसे की सूरत हाल के पेश नज़र लिया गया है। आगे भी सिर्फ इन्हीं रैलियों को इजाज़त दी जाएगी जो कि हमेशा ही भैंसा की रिवायत का हिस्सा बनी रही हैं, लेकिन नई किस्म की किसी रैली की इजाज़त कतई नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कोड होने की वजह से भी भैंसा में टीपू सुल्तान रैली की किसी भी हाल में इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद भी अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए रैली निकालने की कोशिश करता है तो उन पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो पुलिस का ताउन करें और पुलिस के बताए हुए तरीके पर ही अमल करते हुए भैंसा शहर की पुरअमन फिजा को बरकरार रखने में पुलिस का ताउन करें। इस साल होने वाली टीपू सुल्तान रैली को पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं है। भैंसा पुलिस की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि इसके आगे भैंसा में किसी तरह का न्यू रैलीज को परमिशन नहीं मिलेगा। सिर्फ ऐसे ही रैली या प्रोसेशन को परमिशन दिया जाएगा जो सालों से 15-20 साल से भैंसा में चलती आ रही है। ऐसे प्रोसेशन और रैली जो भैंसा के कल्चर का ट्रेडिशन का पार्ट है, सिर्फ ऐसे ही प्रोसेशन को इसके आगे भैंसा पुलिस की तरफ से परमिशन दिया जाएगा। तो इसी के अंदर भैंसा पुलिस की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि इस साल होने वाले टीपू सुल्तान रैली को इसके आगे परमिशन नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही किसानों के मसाइल की एक्सपी में सरगर्दा रही है, अब भी उनके मसाइल पर खामोश नहीं रहेगी। बारिश से तबाह किसानों के अब तक मुआवजे नहीं दिए गए, उनको फौरी अदा किया जाए। जिला निर्मल कांग्रेस के अखिलेती जनरल सेक्रेटरी एम ए लतीफ का बयान। भैंसा जिला सदर कांग्रेस पी रामाराव पटेल की हिदायत पर आज कांग्रेस पार्टी का एक वफद भैंसा तहसील ऑफिस पहुंचकर डिप्टी तहसीलदार ऑफिसर को एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया और मुतालबा किया कि हालिया बारिश की वजह से किसानों का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई का तेलंगाना हुकूमत ऐलान करे
और किसानों के कर्ज की माफ़ी का भी ऐलान तेलंगाना हुकूमत ने किया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से 3 साल का वक्फा गुजर चुका है। अभी तक किसानों के कर्ज माफ़ नहीं किए गए। इन ख्यालात का इजहार एम.एल. लतीफ़ जिला निर्मल अक़लियती जनरल सेक्रेटरी ने मीडिया के नुमाइंदों से किया कि अगर किसानों के हुकूक को नज़रअंदाज किया गया तो कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं रहेगी, हर मुहाज पर किसानों के मसाइल के लिए आवाज उठाएगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ थी और आगे भी साथ रहेगी। जिला सदर जनाब पीर अमराव पटेल साहब की हिदायत पर आज भैंसा कांग्रेस टाउन सदर वडनब श्रीनिवास जानू की क़यादत में आज एक मेमोरेंडम तहसीलदार भैंसा को दिया गया है। उसका मकसद देने का ये है, किसानों के ताल्लुक़ से है। आज 1 महीने से कुदरती की जो बारिश हो रही है, किसान जो है जगह जगह पर जो है अपनी अशिया काट कर जो है रोडों पर डाल दिए, तो पानी से जो है कई जो है ना अशिया ख़राब हो गई, कई जो है किसानों का नुकसान हो गया। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है तो फिर फिक्र नहीं, MG मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्दों, खवातीन और बच्चों की जरूरियात का हर सामान हमारे पास दस्तयाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। mgmart.com। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। बेरोजगार नौजवान खुदकुशियों पर मजबूर है। तेलंगाना की तश्कील के 7 साल बाद भी नौजवान सरकारी मुलाजिमतों से महरूम है। हुकूमत फौरी एलामिया जारी करे। बीजेपी के एहतजाजी धरने से BJYM कायद राजशेखर रेड्डी का खिताब। बेरोजगारी की वजह से नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 7 साल के बाद से अब तक मुलाजिमत देने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। बालकुंडा मंडल में BJYM जिला तंजीम के तहत रास्ता रोको व धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस प्रोग्राम में BJYM सदर राजशेखर रेड्डी ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील में नौजवानों का अहम रोल रहा है और जब अलहदा तेलंगाना का क़याम अमल में आया तो नौजवानों की खिदमत को फरामोश कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बेरोजगारों की खुदकुशियों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। बेरोजगारों नौजवानों को सहारा देने के लिए मुलाजिमत का नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि नौजवानों को मुलाजिमत हासिल हो सके।
इस प्रोग्राम में बीजेपी बालकोंडा मंडल सदर नवीन, बीजेवाईएम जिला जनरल सेक्रेटरी एम बालू व दीगर मौजूद थे। धान की फसलों की खरीदी के बाद जल्द से जल्द मुआवजे की अदायगी को यकीनी बनाया जाए और खरीदी के अमल को तेज बनाया जाए। अब तक खरीदी का अमल इंतहाई सुस्त रफ्तार है, कांग्रेस कायद का बयान। मोसरा मंडल कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम तहसीलदार राजशेखर को आज एक मेमोरेंडम हवाले किया गया, जिसमें मरकजी व रियासती हुकूमतें धान खरीदी में इजाफा करते हुए खरीदी गई धान की रकम फौरी अदा करने का हुकूमतों से मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के मंडल सदर के लक्ष्मण ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतों ने फसल की कटाई के एक माह बाद सिर्फ 11 लाख कुंटल धान की खरीदी की है। बकाया अनाज की फौरी खरीदारी और किसानों को जल्द से जल्द रकम की अदायगी की जाए। बसूरत दीगर किसानों की जानिब से शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाने का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ है। इस प्रोग्राम में मंडल किसान खेत सदर तोटा राजू, मसरा गांव के कांग्रेस पार्टी सदर संगम साइलू, गंगा रेड्डी व दीगर मौजूद थे। बिजली के सार्फिन के मसाइल की फिलफोर एक्सवी की जाए, एम मनोहर का मुतालबा। उन्होंने कहा कि बिजली की सरबराही और भारी बिलों को लेकर अवाम में शिकायतें हैं, जिनको दूर करना ओहदेदारों की जिम्मेदारी है। जिला निजामाबाद में तेलंगाना स्टेट चेयरमैन सोशल जस्टिस फॉर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल एम मनोहर ने बिजली सार्फिन के मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया। उन्होंने CGRF के चेयरमैन ईश्वरैया और CHRF के डायरेक्टर भूमा रेड्डी से मुलाकात की और बिजली सार्फिन के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मनोहर ने कहा कि निजामाबाद, आदिलाबाद, कामारेड्डी, निर्मल, मंशियाल, आसिफाबाद, राजनगर, सिरसिल्ला, जगतियाल अजला के बिजली सार्फिन के मसाइल को हल किया जाए और बिजली सार्फिन बिजली की फराहमी में रुकावट या खिदमात के बारे में शिकायत कर सकते हैं। इस शिकायत पर फौरी इक़दाम किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में SJWHRC तेलंगाना रियासत के अरकान P देवदास, पावर कंज्यूमर ओहदेदारों ने शिरकत की। मरकजी और रियासती हुकूमतों के किसान दुश्मन रवैये के खिलाफ एड़पल्ली में कांग्रेस का एहतजाजी धरना, साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी भी शरीक। एड़पल्ली मंडल में कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने किसानों के हमरा धान खरीदारी के लिए मरकजी व रियासती हुकूमतों के मौजूदा रवैये के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने में साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने भी हिस्सा लिया और कहा कि बीजेपी और TRS हुकूमतें इख्तियार में रहने और मसाइल को हल करने की अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए धरने देकर किसानों को धोखा दे रही हैं। किसी भी किस्म के शराइत के बगैर किसानों की काश्त करदा फसल को हुकूमतें खरीदारी करे और फौरी रकम अदा करने का मुतालबा किया। रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी ने बीजेपी और TRS हुकूमतों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किसान अपना अनाज फरोख्त करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और कुछ किसान मर रहे हैं। किसान दोनों पार्टियों के ड्रामों को समझ चुके हैं और उन्होंने इंतबाह दिया कि मरकजी हुकूमत किसान, अवाम और मजदूरों के खिलाफ पॉलिसियों से बाज रहे। बसूरत दीगर जद्दोजहद की जाएगी। साइबर क्राइम से मुताल्लिक तलबा को बाशऊर बनाने की कोशिश। ZP हाई स्कूल एड़पल्ली में शौर बेदारी प्रोग्राम। नोडल ऑफिसर ने कहा कि जराइम और धांधलियों से मुताल्लिक तलबा में शौर बेदारी लाजमी है। एड़पल्ली मंडल के जिला परिषद हाई स्कूल में तलबा के लिए साइबर क्राइम के बारे में शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में नोडल ऑफिसर विजय कुमार और ASI शंकर ने शिरकत की। इस मौके पर विजय कुमार ने कहा कि रियासत तेलंगाना में महकमा तालीम और पुलिस के ज़ेरे एहतमाम साइबर कांग्रेस का इनेकाद किया जाएगा और हर जिले के मुंतखब स्कूलों में मुंतखब तलबा को 10 माह तक ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। हर स्कूल को बतौर सरपरस्त एक उस्ताद भी दिया जाएगा और कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद स्कूल के तलबा में धमकियों, अगवा, असमत रेजी, ऑनलाइन घपलों के बारे में शौर बेदार करना है। इस प्रोग्राम में एड़पल्ली के नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास, स्कूल प्रिंसिपल साइलू व दीगर मौजूद थे। स्पाइस बोर्ड के ओहदेदारों ने पचल नरकुड़ा में किसान शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया और किसानों को बताया कि हल्दी को मुनासिब तरीके से खुश किया जाए तो ये खराब नहीं होगी और ना ही कीड़ लगने का खतरा होगा। वेलपुर मंडल पचल नरकोड़ा गांव में स्पाइस बोर्ड के ओहदेदारों ने FPO के जरिए किसानों के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में ओहदेदारों ने हल्दी की काश्त, हल्दी को खुश करने के तरीके और दीगर मालूमात फराहम की और स्पाइस बोर्ड के ओहदेदारों ने नकलो हमल की सूरत में रेलवे ट्रांसपोर्ट खिदमात इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और हल्दी उबलने के बाद सीमेंट के ब्लॉक्स पर खुश्क होने पर किसी किस्म का फंगस या बैक्टीरिया का खतरा न होने का ओहदेदारों ने इजहार किया।
इस प्रोग्राम में ओहदेदार, किसान व दीगर ने शिरकत की। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। खुद को या अपने अफराद खानदान को खतरात में ना डालें। जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज जरूर ले। सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाम को तरगीब। उन्होंने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। हल्के असम्बली चार मीनार के मोहल्ले कलंदर नगर के कम्युनिटी हॉल में मुनक्किदा शऊर बेदारी इजलास से खिताब करते हुए सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से अपील की कि वो कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन जरूर ले। इस प्रोग्राम में रुकने असम्बली याखुतपुरा अहमद पाशा खादरी के अलावा महकमे हेल्थ के कई अहम ओहदेदार व मुलाजमीन शरीक थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वैक्सीन के 2 डोज का लेना लाजमी है। कोई शेड या कोवैक्सीन हो, दोनों का लिया जाना इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हैं तो जान ले कि आप अपने आप को और अपने अफराद खानदान को खतरात का शिकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता कोरोना का तीसरा मरहला शदीद मरहला दरपेश होता है तो फिर आप मुतासिर होंगे और अपने अफराद खानदान और अपने मोहल्ले के लोगों को मुतासिर करेंगे। लिहाजा इस वबा की रोकथाम के लिए फिलफोर वैक्सीन के दोनों ही डोज ले लें। अगर आप इस गलत फहमी का शिकार है कि कोरोना का खात्मा हो चुका है तो ये गलत बात है। कोरोना अब भी मौजूद है लेकिन इसका असर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अब भी इस वबा से अमवात का सिलसिला जारी है और ये वबा कभी भी जोर पकड़ सकती है। लिहाजा एहतियात लाजमी है। लिहाजा मेरी इन तमाम अफराद से ख्वाहिश है जो 18 साल से जायद उम्र के हों वो वैक्सीन जरूर ले। उन्होंने कहा कि हेल्थ वर्कर्स और आशा वर्कर्स आपके घर आकर वैक्सीनेशन करेंगे। इस मौके पर आप अपनी मुकम्मल सही तफसीलात फराहम करें और सेल फोन नंबर सही दे ताकि बर वक्त आपको दूसरा डोज दिया जा सके। पहले और दूसरे डोज में 84 दिन का वक्फा होता है। उन्होंने कहा कि अब भी बहुत से मुल्कों में कोविड कहर बर्पा कर रहा है, लिहाजा एहतियात जरूरी है। लिहाजा फिलफोर वैक्सीन लेने के इक़दाम करें। हाज़रीन इकराम, आज का ये इजलास हल्क़े असम्बली याखुतपुरा के खलंदा नगर के इस कम्युनिटी हॉल में इसलिए मुनक़्क़द किया गया है कि आप तमाम हज़रात से ये गुजारिश की जाती है कि कोविड को रोकने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम और आप कोविड के दोनों डोज लें, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। जब तक आप 2 डोज नहीं लेंगे आप अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। आप अपने घर में जो आपके अफराद ख़ानदान या आपके माँ बाप या आपकी औलाद रहती है आप उनको भी ख़तरे में डाल रहे हैं और अतराफ़ व अकनाफ़ के महल्ले जात में जो लोग रहते हैं इन सब को अगर आप कोविड का पहला डोज या 2 डोज नहीं लेंगे तो खुदा न खास्ता हो सकता है कि ये कोविड का वायरस आप तक आएगा और फिर आपके अफराद ख़ानदान को मुतासर करेगा और फिर महल्ले में भी कई और आपके इलाके में कई लोगों की सेहत इससे मुतासर हो सकती है। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोविड का वायरस हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, ये बात बिल्कुल गलत है। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेक्रेटेरिएट के अहाते में मसाजिद की तामीर के लिए आज मुफ्ती खलील अहमद के हाथों संग बुनियाद। अंदरून एक हफ्ता 2 करोड़ 90 लाख की लागत से मसाजिद की तामीर शुरू होगी, वजीर दाखिला का बयान। एमएलसी इदारा जात मुकामी के आजाद उम्मीदवार ने डिवीजन 31 के कॉर्पोरेटर की जाली दस्तखत की और तस्दीकनामा दाखिल किया। कॉर्पोरेटर ने मजलिस कायदीन के हमरा उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत की। मलयाला गोवर्धन मुसलसल तीसरी मर्तबा सीपीएम के सिटी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। एमबीटीसी कायदीन ने इनको तहनीत पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तमाम लोग हर हाल में कोविड के 2 डोज जरूर ले, अपनी और अपने अफराद खानदान की जिंदगियों को खतरात में न डाले। कोरोना में कमी हुई है, खात्मा नहीं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।